that is what I'm going to actually help you guys understand that today. Lovely, amazing, and I need more energy, guys. More people. अगर आप ऐसे बैठे हुए हो आराम से, so that is not the way to actually attend the webinar. Get really charged up and excited. Awesome, lovely. Now, before we get in, can I introduce myself and just tell a bit about my background in maximum 60 seconds? I'll take just 1 minute and I'll tell you, about who am I, why am I doing this, and where do I come from. Do I have your permission about this? Can I introduce a bit about myself? Wonderful. Great. Thank you so much. My name is Sanchit Sethi. I am a yoga practitioner since more than a decade now and a yogic healer. There's only one thing which I do, and what I do is I help people heal their arthritis in a matter of just 5 months, 6 months using yoga and nutrition. I live in Rishikesh. Yoga is my love. And what I do is I just help people who have arthritis. I don't work with any other person right now. I only work with those people who have arthritis, and I help them reverse their arthritis in just a matter of 6 months. And so far in the last 1 year or more than 1 year, I've closely worked with more than 150 plus people, and I've actually helped them reverse their arthritis in just a matter of 6 months. This means that I've closely worked with 150 plus people over a matter of 6 months, over a period of 6 months. और इन 6 महीनों में मैंने उनका आर्थराइटिस रिवर्स कराया है. बट अगर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊं तो I've worked with improved the lives of 28,000 people. People who are suffering from arthritis, I've gotten into their lives. I've helped them with some of my remedies. I've helped them with some of my practices. I've helped them with certain meditation, with certain pranayama practices, and I've touched the lives of 28,000 people. And I've helped them move forward in their journey of healing arthritis. And for 150 plus people I've closely worked with, and I've actually helped them reverse their arthritis. So are you guys excited to attend a webinar of a person who have actually helped people, more than 150 plus people, reverse their arthritis? If you guys are excited, mention the chat box. Yes, Sanchit, I'm excited, and I'm really happy to be here. Awesome, amazing, lovely. There are more than 300 people, 305 people who are attending here. I'm expecting we will have a turn of around 500 people. So you guys are not alone. Almost 400, 500 people are going to actually attend this webinar today, along with you guys, and all of you guys are going to actually help you heal your. All of you guys are going to actually move forward in a journey of healing arthritis. Amazing, brilliant, awesome. More energy, guys. More energy in the chat box. Now, what is the correct way to go through this masterclass? First thing that you have to do is you have to keep your videos on, and you have to increase your focus and attention. So you can also keep your notebook, a pen and paper nearby, so that whatever things I'm sharing, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप नोट करते रहना. So rule number 1, you have to keep your videos on. तो अगर अभी आपके videos off है तो उसको on कर लो सबसे पहले. Rule number 2, questions at the end. कुछ भी आपको questions पूछने हैं, आप बीच में पूछ सकते हो, but ideally अगर आपको कुछ भी questions पूछने हैं तो आप end में पूछना. But अगर आप बीच में पूछ रहे होगे तो Vanita is there. I will be delivering the lecture, the class, and Vanita will be answering your questions. Rule number 3, participate in the chat. The more you are active, the more remedies you get. I make this rule. अगर मेरे को लगता है कि ग्रुप बहुत, ऑडियंस बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही है, मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उनके आंसर करती है, it makes me share more. So whatever I am planning to give a lot of value today, पर अगर आप इस सेशन को काफी इंटरैक्टिव बनाओगे तो मैं और ज्यादा 5-6 वैल्यूज और ज्यादा दे दूंगा आपको. बट इट इज कम्प्लीटली इन योर हैंड्स. अगर आप बहुत साइलेंट बैठोगे, इंटरैक्ट नहीं करोगे तो मेरे से बहुत ज्यादा वैल्यू आपको नहीं मिलेगी. बट अगर आप इंटरैक्टिव करते हो तो आई एम गोइंग टू गिव वे मोर मैसिव वैल्यू टुडे. Rule number 4, raise your hand. Whenever you raise your hand, you can ask a question, and after that, Vanita will be answering your question. Get a pen and paper. Pen and paper abhi rakh lo aap, so that you can make notes and keep smiling. The best way to absorb a lot of knowledge, receive a lot of knowledge, process a lot of knowledge is when you're actually processing, absorbing all those knowledge while you're smiling. So if you guys are ready with all these rules, mention the chat box, Sanchita, I'm ready, and we will start. Mention the chat box, I'm ready, and we will start. Awesome. And let me make this promise कि ये इस तरह का webinar, इस तरह की master class आपने कहीं आज तक नहीं attend करी होगी. That's a promise. I can make this promise right away. Awesome. Brilliant. Lovely. Great. Amazing. Now, let me start with how I got introduced to arthritis. Arthritis की पूरी कहानी start कैसे हुई थी, and I'll share a personal story. My father was suffering from rheumatoid arthritis for 21 years. 21 सालों से, इनफैक्ट 25 years. For 25 years he was suffering from arthritis. और लॉकडाउन के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पेन और स्वेलिंग्स बढ़ गई थी उनकी नीज में.
and then he went to his doctor, rheumatologist, and he increased his steroid dosage. उनके steroid dosage बढ़ा दिए गए थे, and that was the time I was at home only. I was living with them, and that was the time when I decided that I need to do something for my father. I really need to actually help him reverse his, reverse his arthritis. And I was already into yoga, meditation for more than a decade. So I thought कि क्यों ना मैं इनकी help करूँ अपने पापा की, father की, और मैं उनका आर्थराइटिस रिवर्स कराऊं थ्रू नेचुरल मेथड्स, क्योंकि मैं उस स्पेस से आ रहा होता हूँ जहाँ पे मैं ऑलरेडी काफी जेन्युइनली डीपली बिलीव करता हूँ नेचुरल बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज को. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, and what I did was I started researching a lot about nutrition, meditation techniques. So मैंने 6 से 8 महीने the only thing that I did was I was just reading books, a lot of books around nutrition, कि क्या खाना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, and I started researching a lot about meditation techniques and pranayama techniques, and then I started changing those certain things, into his diet. So what I did first was I changed his diet to a gluten-free diet. मैं आपको यहीं से बताना स्टार्ट करते रहूं कि आपको क्या करना है, तो नोट डाउन करते रहना. I changed his diet to a gluten-free diet. सबसे पहले मैं उनको एकदम gluten-free diet पे ले गया, and then I started including some very powerful healing fruits and vegetables. There are certain fruits and vegetables which have very powerful healing abilities. तो मैंने gradually वो fruits और वो vegetables उनकी diet में स्टार्ट करे, और मैंने उनको कुछ meditation techniques सिखाई, सिर्फ meditation techniques और प्राणायाम techniques सिखाई. Now the beautiful part about these meditation and pranayam techniques is that they activate the healing powers of the body. तो मैंने उनकी ये सारी चीजें स्टार्ट कराई, ग्लूटेन फ्री डाइट कराया, कुछ हीलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कराए, और कुछ मेडिटेशन और प्राणायाम स्टार्ट कराया. और ऐसे करते करते मैंने उनके साथ 3 महीने काम करा, एंड इन जस्ट अ मैटर ऑफ 3 months हिज आर्थराइटिस मार्कर्स, जो उनकी रिपोर्ट्स आती थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 years, उनकी रिपोर्ट्स में 30% सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ गया. आज तक पिछले 25 सालों में उनकी रिपोर्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं था, बट in just those 3 months 30% उनके arthritis के symptoms में relief आ गया, and that is how the journey all started. आज का result ये है that I have worked with my dad for more than 1 year, and now आज का result है that he is pain free, he does yoga every day, he does Surya Namaskars every day, and he eats normal food like how an arthritis free person eats. That is how I got introduced to helping people heal arthritis. And when I was able to actually help my father heal his arthritis completely, now he does all the things that a normal person does. Eats normally, कोई ऐसा restricted diet भी नहीं है कि बहुत restricted food खाना है, pains वगैरह नहीं है, stiffness नहीं है, योगा करते हैं daily morning में, meditation करते हैं daily morning में, and he lives like a normal person. And when I saw all these results happening to my dad, that is when I realized that, wow, if I can actually help my father reverse his arthritis, I can also help a lot of other people reverse their arthritis. And that is how yoga heals happened. That is how I started helping a lot of other people heal their arthritis. And in the last 2.5 years, I've helped more than 28,000 people move forward in the journey of healing arthritis. And I've closely worked with 150 plus people, one-on-one. I've worked with them. I've actually helped them reverse their arthritis. So are you guys excited now? Are you guys more hopeful now कि अगर मैंने अपने फादर का आर्थराइटिस ठीक करने में इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, हुआ है, तो मैं आप लोगों की मदद भी कर पाऊंगा, और मैं आप लोगों का भी आर्थराइटिस हील करा पाऊंगा. If you guys are excited, mention the chat box. Yes, Sanjit, I'm excited or hopeful. Whatever feelings you're having right now, mention the chat box. Awesome, lovely, great. Now here's a twist. I only want serious people to be present till the end. Now, normally what happens is, जब भी मैं वेबिनार करता हूँ तो काफी सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, या काफी सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो उतने सीरियस नहीं होता है. I only want serious people to be present in the webinar. तो अगर आप इस वेबिनार में हो तो please make sure that you're serious and you are committed. This is my way to filter out committed people. And I know that it sounds strict, a little strict, but all you need to do is right now just commit 2 hours. बस अगले 2 घंटे आपको मुझे देने हैं, और इन 2 घंटों में आपको पूरी की पूरी जर्नी आज मैं दिखा दूंगा, समझा दूंगा कि आर्थराइटिस से फ्री होने के लिए पूरी की पूरी जर्नी क्या कवर करनी होती है. So are you guys ready and excited for this? If you guys are ready, mention the chat box ready and I'll move forward. Now, let me also give you a gift. For all those people who are going to actually stay till the end, I will give you a list of 3 powerful pranayams. I am going to give you a list of 3 powerful pranayam. जो प्राणायाम मैं अपने फादर को सिखाया था, उनसे उनका आर्थराइटिस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ था. मैं वो 3 पावरफुल प्राणायाम की लिस्ट आपको absolutely फ्री दूंगा, but only to those people who stay till the end. We get reports, we get to know who are all the people who stay till the end. तो अगर आप एंड तक स्टे करोगे तो we will get to know कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एंड तक स्टे कर रहे हैं, और सिर्फ उन लोगों के लिए I'm going to give you that, this as a gift as well. So are you guys going to stay till the end? If you guys are going to stay till the end, mention the chat box and say I'm going to stay till the end, and we will begin. The reason I'm asking you to put so much of comments right now,
is so that I want you guys to wake up and I want you guys to get into that energy of receiving. जब आप उस energy में आ जाओगे, then you will see कि receiving आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. You are, you will be more receptive to what I'm going to share. Amazing, lovely, great, brilliant. Now here's my guarantee. By the end of the workshop, what you're going to discover, 3 things. A, I'm going to actually help you understand the root cause of arthritis, the exact root cause arthritis का हुआ क्यों है, and why arthritis has happened to you. Unfortunately, majority of the लोग जो कि arthritis कितने सालों से सफर कर रहे हैं, वो अपना arthritis इसलिए नहीं ठीक कर पाते हैं क्योंकि उनको root cause नहीं पता होता है. So first, I'm going to actually help you understand the exact root cause of arthritis. Promise number 2, I'm going to give you a clear-cut roadmap to heal your arthritis. कोई ambiguity वाली बात नहीं रहेगी, एकदम clear-cut roadmap step by step lay down करने वाले हैं. जिससे आपको पता चलेगा कि आपका आर्थराइटिस कैसे ठीक होगा. एंड प्रॉमिस नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉमिस, आई एम गोइंग टू आल्सो गिव यू अ प्रूवन 5 phases that we have utilized to help more than 150 plus people heal their arthritis completely. तो मैं आपको एग्जैक्ट रूट कॉज बताऊंगा, मैं आपको एकदम क्लियर कट रोड मैप आर्थराइटिस का बताऊंगा कि आर्थराइटिस को ठीक करने का क्लियर कट रोड मैप क्या है, और उस रोड मैप को फॉलो करने के लिए जो 5 फेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो 5 फेजेस स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा. और ये वही 5 फेजेस हैं जो 150 प्लस पीपल ने अप्लाई किए हैं अपनी लाइफ में और आर्थराइटिस से कंप्लीटली फ्रीडम मिली है. So are you guys excited for it? Amazing, lovely, great. Now, before we start, how many of you have experienced morning stiffness? आप में से ऐसे कितने लोग जिन्होंने morning stiffness experience करी? आप सुबह उठते हो और आपके joints में पेन्स होते हैं, stiffness होती है, चाहे वो knee joint हो, finger joint हो, shoulders हो, elbow हो, और वो धीरे-धीरे आपको कुछ टाइम आपको जॉइंट्स मूव करने पड़ते हैं. अगर आपके जॉइंट्स में मॉर्निंग स्टिफनेस है तो मेंशन करो मॉर्निंग स्टिफनेस है. जस्ट राइट इन चैट बॉक्स मॉर्निंग स्टिफनेस. ओके. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आल्सो एक्सपीरियंस डेली पेन इन योर जॉइंट्स? आप में से ऐसे कितने लोग जिनको जॉइंट्स में डेली पेन हो रहा होता है? कभी नी जॉइंट में हो सकता है पेन हो रहा हो, या कभी एल्बो शोल्डर्स में पेन हो रहा होता है, या बैक में पेन हो रहा होता है, या एंकल में पेन हो रहा है. या आप अभी मुझे चैट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि आपके ऐसे कौन कौन से जॉइंट्स है जिनमें आपको डेली पेन हो रहा होता है. Awesome. Knee joint pain in knee pain, stiffness, back, ankle joints. Okay, all joints. All right. Okay. Right hand, finger joint. Okay. Wow, that's too much. Okay. And how many of you have also experienced either stress, anxiety or depression? आप में से ऐसे कितने लोग हो जिनको stress, anxiety और depression का भी शिकार हुए हो आप? Or are you currently also undergoing through stress, anxiety? Now, this anxiety or stress or depression could be for any reason. It could be because you could be probably anxious because disease was progress कर जाएगी. You could be anxious because आपको डर लगा रहता है कि आप चलोगे तो आप गिर जाओगे और आप इंजर कर दोगे. आपको ये लगता है कि अगर आप चलोगे तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. आप में से ऐसे कितने लोग जिनको आर्थराइटिस के पेन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो रखा है? Oh, my cursor is not working properly. Hold on a second, guys. I will stop sharing and I'll share my screen once again. Just a minute. Okay. And how many of you have experienced joint deformities? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जॉइंट भी डिफॉर्म्स हो गए हैं कि मे बी आपके फिंगर जॉइंट्स डिफॉर्म हो गए हैं, या मे बी आपके टोज डिफॉर्म हो गए हैं, या आपके नी डिफॉर्म होने लगे. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो गई? मेंशन द चैट बॉक्स. ओके. माय कर्सर. ऑलराइट. एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस सोशल आइसोलेशन? आप में से ऐसे कितने लोग जो कि सोशली भी खुद को आइसोलेट करने लगे हो कि फैमिलीज के साथ अब कम जाना है, पार्टीज में कम जाना है, फैमिली गैदरिंग्स में कम जाना है, वेडिंग्स में कम जाना है, बर्थडे पार्टीज में आप कम जाते हो. आप में से ऐसे कितने लोग जिनको जस्ट बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ पेन, आप इतना वॉक नहीं कर सकते, या आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, या आपको एक कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ एम्बेरसमेंट है कि आप चल नहीं पा रहे हो आप अच्छे से, या आपके फिंगर जॉइंट्स आपके डिफॉर्म हो रखे हैं. ऐसे आप में से कितने लोग जो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करो, और इन सारी वजहों की वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से आप खुद को सोशली आइसोलेट करो, आप खुद को अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, फैमिली सोशल गैदरिंग से धीरे धीरे आप आइसोलेट करने लगे. इफ दैट इज द केस, मेंशन द चैट बॉक्स यस. ओके. And how many of you have also started experiencing कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी एडवर्सली इफेक्ट होने लग गए हैं?
पेन, फटीग, स्टिफनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ गई है, डिफिकल्टी हो गई है, कपल्स के बीच इंटीमेसी में इश्यूज आने लगे। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, सो मेनी कपल्स हु आर नॉट एबल टू हैव अ गुड लाइफ, इंटीमेट लाइफ, बिकॉज जॉइंट में पेन्स इतने ज्यादा आ गए हैं। आप में जैसे कितने लोग जो कि I've also interacted with so many women. I've met so many women, personally interacted with so many women. जिनको their partners have actually filed divorce cases for them just because the women had arthritis and they became so physically disempowered. आप में से ऐसे कितने लोग जो इन सारी चीजों से भी एक्सपीरियंस कर रहे हो? If it is good कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स अभी नहीं है, बट अगर अभी ये प्रॉब्लम्स नहीं तो प्लीज ऑल्सो नो द रीजन आई एम एक्चुअली शेयरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज ऑल्सो अ वे टू कम्युनिकेट टू टेल यू दैट ये सारी प्रॉब्लम्स इफ अ पर्सन हैज आर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। Now, how many of you have also experienced loss of mobility and bedridden? आप में से ऐसे कितने लोग जिनको मोबिलिटी या पास्ट में ऐसे इश्यूज भी हुए हैं कि आप बेडरिडन हो गए हो, या आप वो फैमिली से आपको वॉशरूम तक जाने के लिए किसी की जरूरत पड़ रही है, आपको अपने कपड़े चेंज करने के लिए भी किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ रही है, या आपको आपके बेड से उठा के चेयर तक बैठाने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ी है? आप में से ऐसे कितने लोगों जिन्होंने ये सारी चीजें भी एक्सपीरियंस कर ली हैं इन द पास्ट फ्यू इयर्स ऑफ यूज ऑफ आर्थराइटिस, दैट you either got bedridden or there was a significant loss of mobility? If you were the case, mention it has happened to you, mention in the chat box that yes, it has happened. And how many of you have also experienced internal organs damage? आप में से ऐसे कितने लोग जिनके स्टेरॉइड्स के इतना ज्यादा आपने स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर लिया है कि आपका इंटरनल whether it is liver, lung, किडनी, हार्ट, इन सारी चीजों पर इफेक्ट आने लग गया है, आपको और डायबिटीज, थायराइड, ये सारे इश्यूज भी आने लग गए हैं? Because that's what happens when you actually take arthritis medicine so much. Other organ damage also starts to happen. There is an increased rate of heart attack होने लग जाता है, हार्ट की जो मसल है उसमें इन्फ्लेमेशन आने लग जाता है, स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्लेग डेवलप होने लग जाता है आर्टरीज में, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो आपकी आर्टरीज में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगा, तो आर्टरीज आपकी ब्लॉक होने लग जाती है, जो हार्ट के अराउंड सैक होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आने लग जाता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप में जैसे कितने लोग जिनके साथ ये this is a very advanced stage of arthritis, but this happens. And how many of you are experiencing this? If you are experiencing this, mention the chat box. Yes, Sanchit, it's happening. And how many of you have experienced or have gone through painful knee surgery? Knee surgery या कोई और replacement surgery? Knee replacement surgery is a very common surgery. But आप में जैसे कितने लोग जिन्होंने knee replacement surgery भी करा ली है because pain इतना ज़्यादा बढ़ गया था? Okay. All right. Now, how many of you feel that arthritis is controlling your life stage and it is actually slowing you day by day? I'll repeat this question. How many of you feel that arthritis is actually controlling your life stages and is actually slowing you day by day? It's true, correct? And in order to get free from arthritis, in order to get rid of arthritis pain, I'm also sure that you have taken allopathic medicines. आपने आयुर्वेदिक ट्राई किया होगा, आपने फिजियोथेरेपी ट्राई करा होगा, आपने नेचुरोपैथी ट्राई किया होगा, होम्योपैथी ट्राई किया, हो सकता है और भी कोई ट्रीटमेंट ट्राई किया हो। इनमें से कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स आपने ट्राई किए हैं? Let me know in the chat box so that I'll also just quickly go through it and I'll get a glimpse of what all treatments have you taken so far. Allopathy, Ayurvedic. Ayurvedic. Okay. Okay, just a minute. Let me just. But here's the question: if any of these treatments would have worked, अगर इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट काम करता, so why would you join today's workshop? आज वाली वर्कशॉप में आने की वजह ही क्या होती अगर इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट काम करता? The fact that none of these treatments have worked, that is why you guys are here. Isn't it correct? The reason you guys are still attending after still attending this workshop, this webinar, this master class is because none of the treatments have worked. And now the real question is that how come you have taken so many treatments? आपने इतने सारे treatments ले लिए हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, and you're still suffering from arthritis. And now you should ask yourself this question: that are these treatments really curing you? क्या ये treatments आपको जितने भी आपने treatments अभी तक लिए हैं, are they still curing you or they're making you more dependent? What do you think? If you think it's curing you, mention the chat box is curing. If you think it's making you more dependent, mention the chat box is making you more dependent. Correct. More dependent. Okay. Now, the reason why this happens is none of these treatments have worked is because these treatments have only been working on your symptoms. ये जितने भी treatments हैं, ये सिर्फ आपके symptoms पे काम कर रहे हैं. None of these treatments have worked on the root cause.
अगर एक भी ट्रीटमेंट आपके रूट कॉज पे काम करेगा तो आपका आर्थराइटिस ठीक होने लग जाएगा। आप देखोगे कुछ महीनों के अंदर ही वो आपका आर्थराइटिस ठीक होने लग जाता है। और होता क्या है कि जब आप मेडिसिन ले रहे हो या आप ये ट्रीटमेंट्स ले रहे हो तो दो प्रॉब्लम्स होती है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि वो आपके सिर्फ सिम्टम्स पे काम करा, आपके रूट कॉज पे काम बिल्कुल नहीं करा है। एंड सेकंड थिंग व्हाट हैपेंस इज सबकॉन्शियसली यू स्टार्ट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दोस मेडिसिन्स। आप उन मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने लग जाते हो। और होता क्या है कि जब आप सबकॉन्शियसली उन मेडिसिन पे डिपेंड हो जाओगे तो आप एज अ लाइफ लॉन्ग यू बिकम लाइफ लॉन्ग पेशेंट। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे एडिक्टेड हो जाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे, तो फिर व्हाट विल हैपन, यू विल बिकम अ लाइफ लॉन्ग पेशेंट। एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू गो टू अ डॉक्टर, वो डॉक्टर सजेस्ट कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। करेक्ट? ऐसा होता है कि नहीं कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी? करेक्ट? नाउ द रीजन इज ऑल दीज मेडिसिन आल्सो हैव सीवियर साइड इफेक्ट्स। सो ए, वो सिर्फ सिम्टम से काम करे, आपके रूट कॉज पे काम नहीं कर रहा है। बी, आपको मेडिसिन पे जितनी ज्यादा मेडिसिन लोगे उतना ज्यादा आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाओगे। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, मेडिसिन के साइड इफेक्ट इतने ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अभी तो आपको एक बीमारी है, आर्थराइटिस है, बट इफ यू कंटिन्यू टेकिंग मोर एंड मोर मेडिसिन, दिस एंटायर प्रॉब्लम गेट्स वर्सन। क्योंकि अभी आपको सिर्फ आर्थराइटिस है, बट लेट्स से इफ यू टेक मेडिसिन फॉर 4 years, 5 years, 10 years, you will also start inviting more problems. Now, are you guys able to understand why it is important to actually heal arthritis from the root cause and not just work on your symptoms? Are you guys understanding this? कि symptoms पे सिर्फ काम करना कितना खराब रास्ता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, सिम्टम्स पे काम करने का मतलब अगर आप सिर्फ पेन रिलीफ के लिए काम कर रहे हो कि मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, पेन में आराम आ जाता है, अगर आप सिर्फ इन सारी चीजों पे काम करें तो होगा क्या कि आप हमेशा लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाओगे। और फिर अगर मेडिसिन छोड़ोगे तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उन मेडिसिन के सीवियर साइड इफेक्ट आते हैं। And how many of you have been told that by the doctor that you'll have to take medicines lifelong? आप में जैसे कितने लोगों जिनको डॉक्टर से बोला कि अब तो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी? करेक्ट होता है, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आपके साथ ये एक्सपीरियंस होगा कि डॉक्टर्स आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के लिए बोल रहे होंगे कि आर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकता, बट दिस इज अ मिथ। आर्थराइटिस कैन डेफिनेटली बी क्योर्ड। एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस मेडिसिन? आप में से कितने लोग जिन्होंने मेथोट्रेक्सेट कंज्यूम करा है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन एटलीस्ट फॉर लास्ट 3-4 years? आप में से methotrexate is a very common medicine, that doctors prescribe or people take to find relief from arthritis pains. Now, let me just tell you कि अगर आप methotrexate ही ले रहे हो तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लिप्स, माउथ, थ्रोट और टंग, दे कैन ऑल्सो बिकम swollen. अगर कोई methotrexate का बहुत प्रोलॉन्ग यूज करता है तो लिप्स, माउथ, ये सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे सूजने लग जाते हैं, उसमें स्वेलिंग्स आने लग जाती हैं, आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट होने लग जाती है, ब्रीदिंग बहुत शैलो होने लग जाती है। अब ग्रेजुअली बहुत लॉन्ग पीरियड तक अगर मेथोट्रेक्सेट को कंज्यूम करोगे तो आप देखोगे आपको ब्रीदिंग में काफी स्ट्रगल करना पड़ा, आपकी ब्रेथ आप प्रॉपर नहीं ले पाओगे, आपकी जो एयर पाइप होती है वो चोक होने लग जाती है। योर थ्रोट, जो आपका थ्रोट है जहाँ पे आपकी एसोफेगस जाती है या एयर पाइप आपकी जाती है, दैट फील्स टाइट। और आपको स्वेलो करने में, जो भी आप खाना खा रहे हो आपको उसको स्वेलो करने में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। जो स्किन, टंग, लिप्स, उनके कलर चेंज होने लग जाता है, वो डीकलरेशन होने लग जाता है, या तो दे कैन टर्न ब्लू, दे कैन टर्न ग्रे, दे कैन टर्न पेल, एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैव स्टार्टेड टू starts to happen to people who take methotrexate for a long period of time. डिजीनेस, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, ये सारी चीजें आने लग जाती है। आप में से ऐसे कितने लोगों जो ये सारे सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो? आपने स्टार्ट करा था सिर्फ आर्थराइटिस ठीक करने के लिए, बट नाउ यू आर हैविंग ऑल ऑफ दीस प्रॉब्लम्स एज वेल। होता है कि नहीं? करेक्ट? And how many of you have been taking steroids? आप में से कितने लोग जो steroids ले रहे हो? Prolonged steroid usage can actually suppress natural hormone production, making the body dependent on external resources. अगर आप बहुत prolonged steroid use करोगे तो आपकी जो natural body की natural ability होती है ना हार्मोन को secrete करने की, उस natural ability को steroid क्या करता है? बंद कर देता है। तो आपकी body जो natural hormone secrete करती है वो secretion में भी वो सिक्रीशन ही रुक जाता है और उसकी वजह से आप बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनवाइट करने लग जाते हो। दैट इज वाई अगर आप स्टेरॉइड्स को बहुत लॉन्ग टर्म कंज्यूम करो तो आपको लीवर पे प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आपको किडनी पे इम्पैक्ट आने लग जाएगा, आपके हार्ट पे इम्पैक्ट आने लग जाएगा, और ये सारे इश्यूज, हेयर फॉल होने लग जाते हैं, नाखून, नेल्स ब्रिटल होने लग जाते हैं, आई साइट बहुत वीक होने लग जाती है, ये सारे इश्यूज होने लग जाते हैं अगर आपने प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड कंजम्पशन करा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल कंज्यूमिंग स्टेरॉइड्स? मेंशन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल कंज्यूमिंग स्टेरॉइड्स? Oh, so many people. No steroids, me 13 साल से ले रही हूँ. Okay, no, I'm not. Okay, great. I'm in initial stage morning stiffness pain in the parts. Medrol 4 mg. Okay, all right, great.
The reason I'm sharing these things is, so that, for all those people who are, at a beginning stage of arthritis, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टेरॉइड्स वाली दुनिया पे जाना ही नहीं है, स्टेरॉइड्स वाली स्टेज पे जाना ही नहीं है. For all those of you who are still taking steroids or who have been taking steroids, unfortunately you have already started. So उसको हमको gradually एक structured process में बंद कराना होगा, not immediately. But for all those of people, please understand that, the medicines for arthritis have severe side effects. And now, how many of you understood that why are you still suffering from arthritis? The reason you're still suffering from arthritis is because medicines are only helping you find relief from symptoms. Medicines आपको सिर्फ आपके symptoms से relief दे रही है. They're not actually helping you heal your arthritis. आपका आर्थराइटिस ठीक नहीं हो रहा है ना. इमेजिन करो कि आप सिर्फ हमेशा पेन रिलीफ पे काम कर रहे हो, सिर्फ सिम्टम्स को क्योर कर रहे हो, बट आपका आर्थराइटिस ठीक नहीं हो रहा है. एंड एज ए रिजल्ट काफी सालों के बाद, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ कंज्यूमिंग मेडिसिन, होता क्या कि आपका आर्थराइटिस बहुत बहुत सीवियर हो जाता है, क्योंकि उसको ठीक करने पे काम ही नहीं करा गया. Are you guys able to understand this? Are you guys able to understand? That's great, Rukhsana, that आप सिर्फ स्टेरॉइड्स, आप सिर्फ विटामिन सप्लीमेंट्स ले रही हो, but are you guys able to understand why medicines is not a good way to go about it? If you have understood that why medicines is not a good way to go about it, mention the chat box and say, yes, I understand. I want to find freedom from medicines and I want to heal my arthritis naturally. If you want to, if you have understood, mention the chat box, yes, I understood, and I'll move forward from here. Awesome. Brilliant. I want to heal naturally. Okay. So now let's understand why arthritis has happened to you and what is the root cause. How many of you have experienced or are currently experiencing constipation, indigestion, gastritis, acidity, bloating? आप में से कितने लोगों जिनको इनमें से कोई एक या मल्टीपल बीमारी है? अगर जो भी बीमारी है वो मेंशन कर दो चैट बॉक्स में. Constipation, have these constipation, acidity, gastritis, constipation, all of them. Now let me ask you a question. Isn't this surprising कि आप लोग यहाँ पे आए हो arthritis treat कराने के लिए and 80-90% of the people have constipation, indigestion, gastritis, acidity, bloating. आप में से 80 to 90% लोगों को इनमें से एक या कोई मल्टीपल बीमारी है. Isn't this crazy? तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई रीजन हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है between constipation and arthritis? Too much bloating. Are you guys able to see that there could be a possible connection? कोई ना कोई possible connection हो सकता है between all these, digestion, gut related problems and arthritis. हो सकता है, right? Interconnected. Okay. Now let's understand. Let me take an example of constipation. Constipation को समझते हैं कि अगर आपको किसी को एक इंसान को chronic constipation है, तो problem क्या आती है उसकी लाइफ में? Now let's imagine that you have chronic constipation. Now, what is constipation? Constipation means that you're not able to pass your stools. आपके motions regular नहीं हो रहे, करें? Now आप एक एंड पे खाना तो रेगुलर खा रहे हो, बट दूसरे एंड पे क्या हो रहा है कि आपके मोशंस रेगुलर पास नहीं हो रहा है. तो उस केस में होता क्या है कि अगर आप खाना रेगुलर खा रहे हो, आपके मोशंस रेगुलर पास नहीं हो रहा है, तो जो खाना आप खा रहे हो और पास नहीं कर पा रहे हो, वो खाना कहाँ जाएगा? वो आपके गट में रह जाएगा. गट बेसिकली मीन्स इंटेस्टाइन्स. A part of the food that you eat, which you're not able to actually, excrete out, it gets stuck inside your intestine, correct? वो आपके गट में अंदर बहुत लंबे समय तक रह जाता है. Is that correct? Are you guys able to understand this? Now, let's say that, let's say अगर आपको constipation है for the last 5 years or 10 years से you have been experiencing constipation, तो पिछले 5-10 सालों से आप जो भी खाना खा रहे हो, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके गट में चिपकता जा रहा है, अंदर, आपके इंटेस्टाइन्स में अंदर स्टक होता जा रहा है. पर एज अ रिजल्ट वो करता क्या है, आपके इंटेस्टाइन्स को धीरे धीरे अंदर से होल्स क्रिएट करने लग जाता है, रप्चर्स क्रिएट करने लग जाता है. ऐसा होगा, राइट? अगर आपके इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा गंदी हो गई है अंदर से, आपका गट बहुत ज्यादा अंदर से गंदा हो गया है, तो वो धीरे धीरे वो गट को, लाइनिंग को क्रोड करेगा, करेक्ट? और अगर वो कुछ सालों से या कुछ महीनों से अगर आपके इंटेस्टाइन्स आपको कॉन्स्टिपेशन रेगुलर एक्सपीरियंस करो या एसिडिटी एक्सपीरियंस करो या ब्लोटिंग एक्सपीरियंस करो, कोई भी अगर इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे अंदर से क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन्स के की लाइनिंग को अंदर से होल्स या उसके अंदर रप्चर्स क्रिएट करने लग जाता है. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारे मल्टीपल होल्स हो जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ होल्स, माइक्रो होल्स डेवलप हो जाते हैं. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ लीकी गट. आपने लीकी गट का नाम सुना होगा, बट दिस इज व्हाट लीकी गट. जब आपको किसी इनडाइजेशन, क्रॉनिक इनडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में होल्स डेवलप हो जाते हैं. अब आप इमेजिन करो कि आप खाना खा रहे हो, आपका खाना आपके पेट में जाता है और आपके पेट से इंटेस्टाइन्स में जाता है, और इंटेस्टाइन में बहुत सारे होल्स हैं.
तो खाना क्या होगा, उन होल से पास होकर इंटेस्टाइन से बाहर आने लग जाएगा, करेक्ट? नाउ दिस इज व्हाट इज लेजिटिमेटली हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, कि जो भी आप खाना खा रहे हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी होल्स व्हिच आर डेवलप्ड इनसाइड द इंटेस्टाइन, उन होल से धीरे 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 वो खाना पास होकर इंटेस्टाइन से बाहर आ जाता है और बाहर आके आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब ब्लड क्या करता है, इस जो भी खाना आपके इंटेस्टाइन से बाहर आके ब्लड में मिक्स हो जा रहा है, क्योंकि ब्लड इज ऑलवेज इन मोशन, तो ब्लड क्या करता है, इन फूड पार्टिकल्स को इट टेक्स दीस फूड पार्टिकल्स टू वेरियस पार्ट्स इनसाइड द बॉडी, क्योंकि ब्लड ऑलवेज, ब्लड में कोई भी चीज आएगी तो जहां जहां ब्लड जा रहा है वो ब्लड के साथ फ्लो होता रहेगा। So these food particles which pass from the intestine and they get mixed into the bloodstream through the blood, they start traveling into different parts of the body and they mainly start to accumulate around the joints. जैसे मान लो यहाँ पे कोई वो है टॉक्सिन्स है या कोई फूड पार्टिकल है, यहाँ पे जॉइंट पे आके वो ब्लड के थ्रू स्टक हो जाता है, अटक जाता है। They mainly these food particles which pass from the intestine, I repeat, they get mixed into the bloodstream and they start accumulating around the joints. These food accumulations are called toxins in yoga. इनको योगा में हम टॉक्सिन बोलते हैं या हम इनको योगा में अमा भी बोलते हैं। अब अभी ये चीज समझ में आ रही है? Is this clear? Is this clear so far? If this is clear so far, let me know so that I'll move forward. Awesome. Okay. Now I'll repeat कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, इंडाइजेशन था, उससे क्या हुआ कि लीकी गट डेवलप हो गया, इंटेस्टाइन में होल डेवलप हो गए, उन इंटेस्टाइन के होल से फूड पार्टिकल्स ब्लड में पास हो गए, ब्लड में एंटर कर गए, क्योंकि होल से तो इंटेस्टाइन से होल से बाहर आ जाएगा ना, बाहर आने के बाद ब्लड में मिक्स हो गया। ब्लड क्या करता है, उनको डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड कर देता है, फैला देता है और वो जॉइंट्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। नाउ ऑल ऑफ अस हैव इम्यून सिस्टम, राइट? अब हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आता है बॉडी में तो इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब जैसे ही ये फूड पार्टिकल्स टॉक्सिन्स आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, इसको अटैक करो, और वो उसको अटैक करने लग जाता है, उसको फायर करने लग जाता है। अब नाउ बिकॉज दीस टॉक्सिन्स आर लोकेटेड ऑन द जॉइंट्स, हैव स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग, वो जॉइंट्स के अराउंड इकट्ठा हो रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम उन टॉक्सिन्स को अटैक कर रहा है। बट बिकॉज इन टॉक्सिन्स की लोकेशन जॉइंट्स है, तो वो जॉइंट्स को भी अटैक करने लग जाता है और धीरे धीरे जॉइंट्स को डिग्रेड करने लग जाता है, धीरे धीरे जॉइंट्स के कार्टिलेज को डैमेज करने लग जाता है। And that is how arthritis happens. That is why arthritis is also called an autoimmune disorder, because it happens by the attack of our own immune system on our joints. That is why it is called autoimmune disorder, क्योंकि आपका immune system ही आपकी body के against काम कर रहा है। And there are arthritis is not just the only autoimmune disorder. There are many other autoimmune disorders, diabetes, thyroid, and there are many other illnesses which falls under the category of autoimmune disorders. So अभी आपको समझ में आया है कि arthritis हो क्यों रहा है? Are you guys able to understand कि autoimmune disorder develop कैसे हो रहा है? आपका immune system आपके joints को attack क्यों कर रहा है? ये समझ में आ गया? If you have understood this, mention in the chat box understood. I'll repeat once again. Chronic constipation था, chronic constipation की वजह से food आपके intestines में stuck हो जा रहा था, या bloating था, या gastritis थी, food stuck हो जा रहा था। उस food stuck होने की वजह से आपके intestine में holes develop हो गए, उन होल से फूड बाहर निकल के आने लगे आपके इंटेस्टाइन्स के बाहर, इंटेस्टाइन्स के बाहर आके ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड उसको पूरी बॉडी में फैला देता है और वो जाके आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे ही जॉइंट्स में आपके टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, फूड पार्टिकल एक्यूमुलेट होता है, इम्यून सिस्टम उन जॉइंट्स को अटैक करने लग जाता है, क्योंकि उसको टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करना है, और चूंकि वो टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो जॉइंट्स भी आसपास है, तो जॉइंट्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और आपका कार्टिलेज डैमेज होने लग जाता है। दिस इज इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, दिस इज हाउ आर्थराइटिस हैपेंस एंड that is how an autoimmune disorder works. And arthritis is not just the only autoimmune disorder. Diabetes, thyroid भी autoimmune disorder होता है। Okay, now all those people who do not have constipation, I have one more reason कि arthritis होता क्यों है। Now, emotional trauma. How many of you have gone through emotional trauma in your life and arthritis symptoms started to happen after that? आप में ऐसे कितने लोग जिन्होंने इमोशनल ट्रॉमा एक्सपीरियंस करा है और इमोशनल ट्रॉमा के बाद आपको आर्थराइटिस का एक्सपीरियंस होने लगा है, करेक्ट? आप में ऐसे कितने लोग जिनको फॉर लॉट ऑफ वुमेन मेनोपॉज के अराउंड आर्थराइटिस डेवलप होता है, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ सम ऑफ यू माइट हैव आल्सो हैड काफी सारे लोग को कोविड वैक्सीनेशंस के बाद arthritis के symptoms develop होने लगे थे, correct? So any stress that you store inside your body, if that stress remains inside your body for a long period of time,
होता क्या है वो आफ्टर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, इट मैनिफेस्ट। क्योंकि आप कोई भी अगर इमोशनल ट्रॉमा है या कोई स्ट्रेस है, कोई नेगेटिव इमोशन है, अगर आप अपने अंदर सप्रेस कर रहे हो तो आपके सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है, और सेल्स में जाके स्टोर होता है तो क्या होता है कि कुछ सालों में वो किसी न किसी फिजिकल एलिमेंट का फॉर्म ले लेता है।